So, Sunita ji, Yes, sir. welcome Thank you. to Thank you you. on our podcast, Thank you. Within the Life. The this podcast is only for people who have real life experience, Mm. no academic, no theory, just whatever you have Experience. experience within your life. That is very important. Absolutely. So that is why I am keeping, and all our podcasts are only casual talks. Yes. But the serious talk will come, Mhm. but it will be just like a drawing room talk. Yeah. So, आप अपने बारे में कुछ ये बताइए कि क्योंकि जैसे आपके उस पूरे क्वेश्चन में और समय मिल रहा है Mhm. कि पेडागोजी में आपने काफी कुछ किया है, Mhm. लेकिन मेरा प्रश्न दूसरा है। Mm. मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह की क्वालिटी एजुकेशन पेडागोजी से आएगी, मिलेगी, उससे क्या हम अपनी वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए इस समाज में Mm. शांति और व्यवस्था ला सकते हैं? हम ये कैसे कर पाएंगे? इन दोनों को कैसे, क्योंकि शिक्षा पढ़ा, पेडागोजी तो शिक्षा की साइंस, आर्ट और वो है, लेकिन आप इससे कैसे समाज में कैसे सुधार करेंगे? हाउ डू यू इम्प्रूव द वैल्यू सिस्टम ऑफ द सोसाइटी? Yeah. Yeah. इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? See, what I feel is that when we talk about education these days, the purpose of education has become employability. Yes, That is what that the is the purpose. problem. That is a big problem. That is Are we getting education only for the sake of employability? you have just hit the right thing. Because if your employability is directly or indirectly connected to your how much you have scored, grades, and all those things. Yes. So where is the quality, which is the values? Absolutely. They have lost. Yeah. So I feel, the education pedagogy that I believe in, it is called value creating education pedagogy. but don't you think it is very difficult? The kids are coming from the same backdrop. Yeah. You are telling something. How will you teach those children your pedagogy? Yeah. कैसे बताएंगे उनको कि वैल्यूज को कैसे करेंगे? वो कैसे कि उनको अपने माँ बाप का क्या करना चाहिए, समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए? इज देयर अ वे टू टीच? वेरी सिंपल थिंग, एक पेडागोजी है जिसका पर्पस है एम्प्लॉयबिलिटी, whereas value creating education pedagogy talks about what is the purpose of education. The purpose of education is happiness of the learners. Oh, really? Yes. So is that the purpose of This is the purpose of education, actually. Employability, it is not defined anywhere. This is, we always look at pedagogy, to Western authors like John Dewey, Kant, etc. We never look at Eastern authors. So in the East, there is this person called Tsunesuburo Makiguchi. He was an educator, and he was a principal in a small school. He chose to go into a small school where, war torn Japan, and the children were coming very poor. They didn't have food to eat. But there he developed this pedagogy, saying that these children, can I make the purpose of education as happiness of the learners? Very good. And that's where the value creating education came in. No, but this time, why you have to go to Japan? The Indian pedagogy is also like that. Absolutely, it may be. But you see, somewhere it is lost, no? Indian pedagogy may be that, but now somewhere it is getting lost. But we are responsible for it. We are responsible for it. The whole Gurukul system is based on that only. अब तक तो हमने, we did not
blink an eye when the education system was introducing John Dewey. हमारा education system is majorly based on Western authors. That is misfortunate. है ना? But let's look at the Eastern authors. Nobody talks about it. So I'm teaching in a college and I've been teaching since 1986. And from 86... So you are teaching only pedagogy? No, I'm teaching subjects. Okay. But in that, we have to use some pedagogy. There's a heart of learning, So every teacher, if they understand what is the heart of learning, then that is what is pedagogy. But I understand, but the children, do they feel the difference when you are teaching or with some other teacher is teaching? Absolutely. So I am heading the department. So I make sure that all teachers in my department are using this pedagogy. So through my talking to them. Do you think that people are implementing this? To a very large extent, I am able to implement in my institute. You are in Pearl? No, I am right now teaching at Indian Institute of Art and Design. Okay. So, there is no rebellion in the teacher? No, why should there be any rebellion? Because if I'm saying that let's concentrate on the student when you're teaching something, do you see that twinkle in their eye? Do you see the joy? Do you feel after the class is over, they are so inquisitive as to what can I do more in order to learn? So when I see that, and when the students are going out from first year to second year to third year. But somewhere this number games will come. Somewhere. Numbers of students. No, the number means the marking system, the gradation and all those things will come. See, right now, the system is, suppose there are students who finish their graduation and they go out in the industry to work. They all have to work. तो employability आएगा ना? नहीं, employability तो आएगा, लेकिन वहां पे employer क्या कहता है? वो कहता है कि तुम A ग्रेड हो या A+ हो या C ग्रेड हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है. What is your attitude? What is your passion to work? That is what is most important. The industry is saying, even if you have a blank canvas, you don't know the subject, it's okay. But you come to us with a great attitude, great passion, because we can't teach you that. But this is very difficult task. There is no course for this. There is no course for it. But this interaction that we have with the students, this polishing, this nurturing, जैसे एक diamond है. That is very difficult job. You are doing something very. This is. ये कलयुग में ये आपका कैसे होगा नहीं. स्कूल में आप वो पढ़ा रही हैं जो कि एम्प्लॉयबिलिटी को गारंटी ना करता हो. आजकल तो सारे ट्रेनिंग सेंटर्स यही करते हैं कि आपको इतना हो जाएगा, आपकी फोटो छप जाएगी अखबार में, ये हो जाएगा, आपको इस इंस्टीट्यूट में और मिल जाएगा एडमिशन, उस इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा. This is the problem which you might be facing every day. You have an interaction with the parents also? Yes, we do have interaction with parents. कई बार parents आके हमारे पास बोलते हैं कि हमारे इस बच्चे को कहीं पे एडमिशन नहीं मिल रहा है. तो मैं ये सोचती हूँ, क्या हमको इस बच्चे को ये महसूस कराना चाहिए कि ये बच्चा किसी लायक नहीं है. क्या मैं इस बिना तराशे हुए हीरे को एक स्पार्कलिंग डायमंड कैन आई मेक? So I take these students. And this one of such students. You need a full team for this. Yes. It's not a single person's job. It's not a single person's job. And on a small scale, like if I have, say, 9 people in my team, I'm trying to train these 9 because these 9 are not just teaching in my department, they are teaching in other departments as well. So they go with this philosophy to the other departments as well. You are doing a great job, but this is very difficult. It cannot be defined what you are doing. I cannot visualize. Is there a curriculum for that? There is no curriculum. There is no curriculum as such. But I want to read this one thing. As I said, that what is the purpose of education? One line, that is,
realization of not just now, but lifelong happiness of the learner. And then the second thing that Mr. Makiguchi says, he says, the aim of education is not to transfer knowledge. It is to guide the learning process, to equip the learner with the methods of research. आजकल वो समय चला गया सर जब हम बच्चों को नॉलेज देंगे, लेकिन नॉलेज तो गूगल दे रहा है, तो मेरी क्या जरूरत है ना? लेकिन जब मेरे बच्चे आते हैं मेरे पास, मैम ये जो टॉपिक है इस पे तो किसी ने कोई रिसर्च नहीं किया है और हमको इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो मैं उनको बिठाती हूँ अपने पास। मेरे पास भी वही गूगल है जो इन बच्चों के पास है, तो मैं वो गूगल पे जाती हूँ, मैं लिखती हूँ और वो इतने सारे पेपर्स दे दिए। तो मेरा बच्चा मुझसे पूछता है, मैम ये कैसे आ गया आपके पास? मैंने कहा क्योंकि मैंने कंप्यूटर को, मैंने गूगल को सही क्वेश्चन पूछा है, क्या प्रॉम्प्ट्स आप दे रहे हो, है ना? तो ये जो टीचर का आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीचिंग नहीं है, वो फैसिलिटेटर है। वो हमारे जमाने में जब हम स्टूडेंट थे, वो टीचर एक पेडेस्ट्रियन पे होता था और हमारे लिए वो टीचर तो नॉलेज का भंडार है और जो बोलेगा वो बिल्कुल गॉस्पेल ट्रूथ है, बिल्कुल सत्य है वो। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है सर। हर इंफॉर्मेशन क्लिक ऑफ बटन पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो मेरी तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्यों है जो बच्चे हमारी क्लासेस में फिर भी आ रहे हैं, है ना? Do you charge any additional fees for this? No additional fee. The fee that the students are paying, that is the way it is. Why should we charge anything additional? Because it needs a lot of endeavor and lot of thorough, intense interest. Yes. Which is very much important. Otherwise, student will be confused. Absolutely. What are you doing? तो कई बार ना सर आजकल का ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहां बच्चे केवल सीखने नहीं आ रहे कुछ, लेकिन वो आजकल हमारे पास कोविड के बाद स्पेशली इतना मेंटल इश्यूज है, वो हमारे पास अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। मैम आई जस्ट वांट टू गिव अप, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। हमको उनका हाथ उस समय पर भी कि आप ऐसा नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हम आपके साथ हैं, हम उनके साथ बैठ के कॉफी पीते हैं, वो एक वो डिस्टेंस नहीं, ये कौन सा क्लास होता होगा? ये आपके सब्जेक्ट का क्लास है कि ये कोई और क्लास? कॉलेज क्लास के बाहर की बात। हाँ, वही तो ये क्लास में तो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही है, तो वहां से ये कहाँ आएगा? कई बार सर इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए ना हम उनको क्लासरूम में नहीं बिठा रहे, हम उनको मॉल में ले जाते हैं, हम उनको कहते हैं देखो कस्टमर कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसी चीजें। अब वो टाइम चला गया जब मैं अपना डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व पढ़ा रही हूँ, उसका इंटरैक्शन, ये सब ठीक है, लेकिन क्या वो मुझे दिख रहा है जब कस्टमर जा रहा है मॉल में सामान खरीदने? है ना? ये तो आप मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन डूइंग। हमको अपनी जैसे कि सारे ब्रांड्स अपनी बाहर विंडो डिस्प्ले कर रहे हैं, है ना? उसमें वो क्या ऐसा कर रहे हैं आजकल कि कस्टमर देखता है और वो कहता है अरे ये प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए और मुझे अंदर जाना है। और जब वो अंदर जा रहा है, पहले तो जैसे हम अंदर जाते थे, सारे शॉप फ्लोर में जितने भी लोग हैं वो हमारे पास आए, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, लीव मी अलोन। तो आजकल उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस कस्टमर के पास जाके आपको बात करनी है, क्या कस्टमर ने आपको बुलाया कि मेरी ये हेल्प करो। हाँ, नहीं वो तो प्रथा खत्म हो गई है ना कि वो सब लोग पूछते थे। हाँ, कस्टमर वांट्स टू बी लेफ्ट अलोन। लेकिन अगर हम एक फैब इंडिया के स्टोर में गए और हमने पूछा कि ये वाला जो साड़ी है इसके ऊपर जो ये किया हुआ है काम, कलाकारी की हुई है, ये कौन से स्टेट की है, अब वो शॉप फ्लोर वाला बंदा ये नहीं कह सकता है कि मुझे नहीं पता। और ये जो शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं ये भी कहीं पे बच्चे पढ़ के आए हैं, तो उनको किस तरीके की ट्रेनिंग देनी है ये सब हमको सिखाना पड़ेगा।
तो ये आप मैंने इसका मतलब कि ब्रांडिंग को भी टीच करती हैं क्या, कि कैसे ब्रांड को कैसे किया We teach these are different subjects, हाँ. है ना, ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, तो ये सब What सब्जेक्ट्स. is your specialization? My specialization is, of course, I teach research and I teach economics to the students. हाँ. रिसर्च रिगार्डिंग व्हाट? रिसर्च रिगार्डिंग, जैसे कि अगर कंज्यूमर का रिसर्च करना है, कंज्यूमर का बिहेवियर पता करना है, तो कैसे हम क्वेश्चनेयर बनाएंगे, हम कैसे जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे कि मुझे पता चले कि ये मेरा एम है इस रिसर्च का. क्या जब मैंने ये सारी फाइंडिंग्स की तो मुझे पता चला कि ये कस्टमर क्या चाहता है, ये एम क्या है. अगर सपोज एक कंपनी को अपना प्रॉफिट उसका नीचे जा रहा है और उसको ये प्रॉफिट को ऊपर लेके जाना है, पहले तो हम ये रिसर्च करेंगे कि क्यों इसका प्रॉफिट नीचे जा रहा है, कहां पे ये लोग गलत हैं. तो वहां पे ये आपकी थ्योरी लगती है? थ्योरी भी लगती है, बिल्कुल बिल्कुल उसमें, क्योंकि वो तो उसके ऊपर लागू नहीं होगा पेडागोजी ना. जब तक वहां तो हम बेस बनाते हैं, हम मॉडल्स सिखाते हैं, वो थ्योरी के मॉडल्स होते हैं, और उसका एप्लीकेशन फिर हम सिखाते हैं. बिकॉज मेरे जमाने तक वो खाली थ्योरी बता देते थे. हाँ, मतलब जो ब्रांड ओनर है या जो कहने का मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको आप कैसे ये पेडागोजी में लाएंगे? हाँ, उसको हम किस तरह से इन्वॉल्व करते हैं. हाँ. जब सपोज बच्चे को किसी इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप करनी है या काम करना है, वो कहते हैं कि तुमने इनको ये नहीं पढ़ाया. हाँ. इंडस्ट्री कहती है. हाँ. तो हमने आजकल अपना करिकुलम कैसे बनाना शुरू किया है. हमको पता है कि क्या इंडस्ट्री को चाहिए, लेकिन ये हम सोच रहे हैं, तो हम इंडस्ट्री के पास जाते हैं. हमारे बच्चे इंडस्ट्री के पास हैं, हम उनसे पूछते हैं कि तुमको क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि हमारे बच्चों को नहीं आती हैं, और वो हमको उनको सिखाने की जरूरत है. तो वो हमको बताते हैं. मेजरली, आप बिलीव नहीं करोगे, मेजरली हमको 70% इंडस्ट्री कहती है कि आप केवल इनको सही एटीट्यूड से भेजो, जिसका कि कोई कोर्स नहीं होता, जिसका कोर्स नहीं होता है ना? वो खाली हमारा बिहेवियरल होता है. आप मतलब मैं बहुत, हमारा 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है. ऐसे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में एकदम नखिद, जब तक वो थर्ड ईयर में जाते हैं सर, हम उनको पहचान नहीं पाते हैं कि ये वही बच्चे हैं, क्योंकि वो इतना ग्रूमिंग हुआ है उनका, और वो एक रेस है ना जिसमें वो भाग रहे हैं कि मैं फर्स्ट आ जाऊं. ये वो रेस, तो इस रेस को भी तो रोकना है. इस रेस को हम सिखाते हैं कि ये 2 हाथ हैं, क्या मैं एक और को पकड़ के, दूसरे को पकड़ के, क्या हम साथ में जा सकते हैं. अच्छा. इंटरडिसिप्लिनरी कोऑपरेशन टुगेदर, बिकॉज हम अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन हमारे पास जब और बच्चे साथ में हैं, so then we will form a community. Very good. So देखिए, जैसे ना एक मेरे पापा मेरे को एक स्टोरी बताते थे कि ये कुछ फ्रेंड्स, उनको 2 चीजें दिखाई गई, एक हेवन और एक हेल. तो हेवन में जब जाते हैं तो वहां देखते हैं कि उन लोगों के हाथ, इन्हें बाजू बहुत लंबी है, एंड ये हेल में गए वो लोग तो बहुत लंबी हैं, और वो, क्योंकि अगर लंबा होगा तो मेरा हाथ नहीं जाएगा मुंह तक, तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगी. हाँ, तो वो दूसरे को दे दिया, खिला, है ना. नहीं, लेकिन हेल में वो लोग मतलब पेन से, they are so tortured, they're just so unhappy, they are so thin that they are wondering how do we eat. But when they go to heaven, they see the same problem is there, but they are hale and hearty and very happy because they are feeding each other. ये बहुत है ना. So, और एक बहुत अच्छी चीज हम बच्चों को सिखाते हैं कि जब आप अंधकार में जाते हैं और आप मेरे घर आए, सीढ़ियों में अंधेरा है, मैंने आपके लिए एक टॉर्च या एक लालटेन लगाई, तो जब मैं आपको रास्ता दिखा रही हूं, मेरा रास्ता भी इल्यूमिनेट हो रहा है. So when I can grow only when you are growing.
So so बच्चे ग्रुप्स में जब प्रोजेक्ट करते हैं, this is what we try to teach them. अच्छा, तो उसमें ये भी तो होता होगा, प्रॉब्लम्स भी आप लोग रखते होंगे? बहुत आती हैं प्रॉब्लम्स। मुझे इस बच्चे के साथ काम नहीं करना है, मुझे उस बच्चे के साथ काम नहीं करना है ना, तो वो हमको हैंडल करना पड़ता है। तो आपका जो सुनीता जी, दिस वाज योर इंटरेस्ट सिंस योर चाइल्डहुड, ये इस तरह का काम करना ये सिंस आप हॉबी थी या जुनून था, क्या था ये? यू नो सर, टीचिंग में आना कभी सोचा नहीं था। हाँ, कभी नहीं सोचा था। मैं बस जब मैं कॉलेज में गई, स्कूल में मैं बहुत ही बेकार स्टूडेंट थी, यू नो, और मेरा भाई बहुत अच्छा होता था, मेरी बहन बहुत अच्छी होती थी। क्योंकि इस तरह की चीज में आने के लिए आपको वो चाहिए ना कि कोई ऐसा इंस्पिरेशन तो था नहीं। तो वो 19 इयर्स की थी मैं, हाँ, जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज कर रही थी, और तब मैंने पढ़ना शुरू किया माकीगुची, सुनेसेबुरो माकीगुची's फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। वो मुझे इम्पैक्ट किया। सो मैंने सुनेसेबुरो माकीगुची को मैंने 1982 में पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने उनकी ये एजुकेशन पैडागॉजी देखी, यू नो, तो फिर 1986 में मैंने अपना मास्टर्स वगैरह खत्म किया। और जब मतलब प्रोफेसर ने कहा कि चलो तुमको ले चलते हैं उस कॉलेज में जहां तुम पढ़ा सकती हो, हाँ, he found a right destination। अदरवाइज आप किसी और कॉलेज में उतना कंफर्टेबल भी नहीं होंगे। नहीं, मैं हर कॉलेज में, जिस कॉलेज में भी मैंने बॉम्बे में पढ़ाया 20 साल, यू नो, एंड वहां हर कॉलेज में जहां पर भी मैं जाती हूँ, मैं अपनी ये एजुकेशन, यू नो, वैल्यू क्रिएटिंग एजुकेशन पैडागॉजी, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। रिपीट करिए, क्या? वैल्यू क्रिएटिंग एजुकेशन पैडागॉजी, which is also called as humanistic education। Okay। बहुत सुंदर एक डिफरेंस दिया है ट्रेडिशनल एजुकेशन में और ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। क्या है? फर्स्ट, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है ना, दे फोकस ऑन टीचिंग। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन फोकसेस ऑन लर्निंग। हाउ वंडरफुल। अगर मैं एक टीचर हूं और मैं ये सोचूं कि मैं तो गॉस्पेल ट्रूथ हूं, मुझे तो सब कुछ आता है, जो मुझे आता है मुझे पढ़ाना है, अनरेक्टिफाइबल है ना, अनरेक्टिफाइबल, इनकरेजेबल। लेकिन अब मेरा क्या है, आजकल मैं कितनी चीजें अपने बच्चों से सीखती हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं महसूस होती है। कितना सारा कंप्यूटर का काम होता है जो मुझे नहीं आता है, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर मुझे नहीं आते हैं। तो अगर बच्चा मेरे साथ में, मैम प्लीज डू इट लाइक दिस, I said, oh really? And I do it like that and I get it. And I can't tell you, I feel so indebted कि मुझे ये बच्चे ने एक नई चीज सिखा दी है ना। हमारे टीचर्स ने कभी ऐसा सोच सकते थे हम कभी करेंगे वैसा? कभी नहीं। तो एकदम इनवर्स पिरामिड हो गया ना। Absolutely, absolutely. Then the second thing is, you know, traditional education used to reward submission. Yeah? Whereas ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन इज रिवॉर्डिंग पार्टिसिपेशन। हम बच्चे को कहते हैं, हम एक रेस में जब रन कर रहे होते हैं ना, जरूरी नहीं है विनर इज नॉट द वन हु कट्स द रिबन एट द एंड, बट द विनर इज एवरीवन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट रेस। आई मे हैव, अकेले दौड़ के क्या फर्स्ट आओगे, है ना, और लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं सब। मेरी कैपेसिटी में अगर मैं लास्ट भी आई हूं तो भी मैंने वो रेस कंप्लीट की है। Don't give up in the middle is what we tell our students. Very nice, very nice. तो मतलब ये चीज आप बच्चों में इंस्टिल कर पाती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज तक मेरे 1986 की बैच वाले बच्चे वो आज तक मुझे मैसेज करते हैं, हैप्पी टीचर्स डे। So this value creating education, yeah, so is it acceptable to this boards and CBSE board? सर आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़िए, उसमें आप देखेंगे there is a lot of humanistic education that they are putting in now.
द होल सिस्टम, न्यू एजुकेशन पैडागॉजी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, NEP, हाँ NEP है, पूरा चेंज हो गया है सर अभी. But you know that this humanistic education, I have a friend who is in Hindustan Times, he is writing. So he wrote about humanistic business. Okay, yeah, fantastic. It will come from this only. हाँ, humanistic. मैं आपको चीट नहीं करूंगी, मैं ethically काम करूंगी. हाँ, तो humanistic, he has written a very big book on that. Wow, fantastic. He is a chief editor in Hindustan Times. I said, यार humanistic तो वो नॉन प्रॉफिट शेयरिंग और नॉन कैपिटलिस्टिक, यस, कट थ्रोट नहीं होना चाहिए. जो आप बिल्कुल कोऑपरेशन से होना चाहिए, गोल सेटिंग से होना चाहिए, दोनों लोगों का उद्देश्य क्या होना चाहिए. तो जैसे टाटा एक हम लोगों का है, ऐसे एग्जाम्पल उन्होंने बताया, जो शेयर करता है वैल्यूज को, पेन्स को, कि आपको जितने भी एम्प्लॉइज हैं, तो उनके ह्यूमनिस्टिक बिजनेस मॉडल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है. वो क्योंकि कोई भी आदमी को आप प्रॉफिट इज थेफ्ट पहले कहा जाता है ना, प्रोदा ने कहा था, तो प्रॉफिट इज थेफ्ट. तो ऐसी स्थिति में बच्चों को जब सिखाना कि नंबर पाना नहीं, लर्निंग करना जरूरी है. एब्सोल्युटली. जैसे हमारे बच्चे जब जाते हैं इंडस्ट्री में, मतलब जब कोर्स खत्म हो जाता है और गए वो इंडस्ट्री में, मैम वो तो हमको केवल 40,000 रुपए तनख्वाह दे. हाँ, तो हमने कहा कि इस उम्र में पैसे मत देखो, इस उम्र में ये देखो कि 40,000 रुपए देकर आपको सिखा रहे हैं वो लोग. तो ये एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है. और ये शिफ्ट मैं देख रही हूँ बच्चों में. और यही बच्चे जब उस पैशन के साथ उस 40,000 में काम कर रहे हैं, ये बच्चे 2 साल में उनको क्या प्रमोशंस मिल रही हैं, उनका जो पे पैक है इज मच मोर देन व्हाट दे एक्सपेक्टेड. हाँ, मतलब वो IIM और IIT मॉडल पे सोचता रहता है जो बच्चा, उसको अचानक लगेगा कि हमको 40,000 मिल रहे हैं, वो लोग 1.5 लाख 2 लाख पाते हैं. हाँ, लेकिन उस पे ना वो लोग पहुंच जाते हैं. आजकल तो IITs में भी नहीं मिल रहा है सर. जॉब क्रंच विद IITs, IIMs इज ह्यूज. तो आपका सुझाव क्या होगा कि जैसे अब हम लोग अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनको IIT IIM की ट्राई करने के लिए ना कहें? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि जो बेस है ना, व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम गेटिंग एजुकेटेड, ये पर्पस को रीडिफाइन करना जरूरी है. ये पर्पस इज गोइंग टू बी ओनली फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द लर्नर्स. जैसे मैंने शुरू में कहा था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन? इट इज नॉट एम्प्लॉयबिलिटी. द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज happiness of the learners. Imagine if so many happy people are there, they will give only happiness to others. वो जैसे 3 Idiots वाला जो मास्टर है, सही है. उसमें जो है उसने बताया कि तुमको एक्सीलेंट, जैसे पूरा जो उसने मैकेनिकल फिजिक्स को पढ़ कर सुना दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं, एक्सीलेंट और होना अलग बात है, समझ के कर सकता है, नंबर कम ज्यादा पाना जरूरी नहीं है. अभी आप सितारे ज़मीं पर देखिए, हाँ, नई पिक्चर जो है ना, जो लास्ट में ये मतलब सॉर्ट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं फुटबॉल की, एंड लास्ट में जिस टीम को वो ट्रेन कर रहे हैं, वो टीम वो पूरे जोश में जाते हैं कि हम जीत कर आएंगे, लेकिन वो विनिंग टीम से हार जाते हैं फाइनल्स. और ये जो हीरो है वो बहुत ही इज लाइक वेरी डिप्रेस्ड. बट वो क्या देखता है इन बच्चों में? दे आर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ द विनिंग टीम. दे आर जस्ट सो हैप्पी अबाउट इट. आई कैन नॉट टेल यू हाउ आई वाज सो मूव्ड बाय दैट. But in your victory, can I celebrate? I think the whole crux of that was very brilliantly made. बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं. मैं आपको केवल एक और ये मेरी एक टीचर्स प्रेयर, मैं हमेशा ये प्रे करती हूँ हर सुबह कॉलेज में जाने से पहले. मेरी क्या प्रेयर है? एक लोबेल नॉरियल थी, मिस्ट्रेल,
And what Mistral wrote, let me be more mother than the mother herself in my love and defense of the child who is not flesh of my flesh. Help me to make one of my children my most perfect poem and leave within him or her my most melodious melody from that day when my own lips no longer sing. Very good, very good, very good, very good. This is the heart. This is a poem from where? You know, this is a Nobel laureate, and Tsunesaburo Makiguchi, he has quoted her. Very That good. this should be the way we foster our children in the colleges and schools. अच्छा, कभी कभी सुनीता जी आपको ये कंपैरिजन नजर में नहीं आता कि जो आप कर रही हैं ये समाज में अब कोई कर नहीं रहा है? ये नहीं लगता कि और कोई नहीं कर रहा है? कोई बात नहीं. You know, River Ganges also begins, mighty River Ganges begins with a single मतलब आप droplet. अकेलापन महसूस नहीं कभी करती? नहीं. क्योंकि इतने लोग जो कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है जो आप कर रही हैं. हाँ. That is something. सर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा जैसे वो रिवर गैंजेस एक ड्रॉप से शुरू होती है, रास्ते में वो और ड्रॉप्स को एक्यूमुलेट करती है और एक माइटी रिवर बन जाती है. तो मुझे ऐसा लगता है हाँ. कि मैं, मेरे डिपार्टमेंट के लोग, मेरा कॉलेज, है ना, तो एक दिन आएगा जब ये माइटी रिवर बनेगा. दिस इज वेरी नोबल थॉट, बट लेकिन हम जो ये समझते हैं कि टीचर को ये लगता ही होगा ना कि हम ऐसा तो नहीं कुछ बकवास कर रहे हैं, बाकी लोग तो नहीं करते ये. और वो टीचर भी आपस में बात करते होंगे ना आप लोग. सर, और मैं अपनी वर्कशॉप्स लेती हूँ बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में, जहां मैं ही बताती हूँ ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ये वैल्यू क्रिएटिंग पेडागॉजी. मैंने बहुत स्कूल्स और बहुत कॉलेजेस में इसकी वर्कशॉप्स ली हैं ताकि इसकी अवेयरनेस बहुत लोगों में आए. Very good. Because the people are blind, they don't know this. Yeah. Myself, I don't know this type of education pedagogy you are doing it. But how do you invite people? Means so हमारे कॉलेज, workshop. हाँ, तो मेरे कॉलेज में जो मार्केटिंग टीम है वो ऑर्गेनाइज करती है हमारे. अच्छा. तो वो प्रिंसिपल्स को जानती है डिफरेंट स्कूल्स में. तो मुझे याद है हमको एक स्कूल में, कोठारी स्कूल में बुलाया गया था नोएडा में. एंड जब मैं वहां गई तो ये सैटरडे को था मेरा वर्कशॉप, एंड सैटरडे को उनकी छुट्टी होती है. अब ये आ गई है वर्कशॉप लेने. तो जब मैं शुरू कर रही थी, आई सॉ ऑल द टीचर्स वेरी नेगेटिव टुवर्ड्स कि क्या ये हमको प्रिंसिपल ने बुला लिया है ना. लेकिन आधे रास्ते जब मैं पहुंची अपने वर्कशॉप में और लंच ब्रेक जब हुआ, ये सारी टीचर्स मेरे पास आई हैं, कहती हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं अटेंड किया. तो गंगा की बूंद बढ़ती गई. बिल्कुल बढ़ती गई, वही मैं कह रही. बहुत अच्छा. You are doing such a noble thing, and I am really privileged to have you here. Thank you, sir. I will definitely through this channel, and whatever you want to give it to the show, you give it so that we will show there. Absolutely. And I become a part of that bond Yes, to enhance it. Yep. So this is our 57th episode of our. Oh, wonderful. Amazing. So welcome to this, and we will meet many more times. Yes, we will. Because Definitely. still I am a novice here in your field, but definitely we'll talk and we'll bring workshops with you. Absolutely, we'll do that. Thank you, sir. Thank you. Thank you. आपको बहुत बहुत स्वागत. आप सब लोग जो देख रहे हैं इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भेजें. आपको हम पेपर्स भी भेज देंगे, इसको देखें और अपने कमेंट्स भेजें. इस तरह के लोग कब हैं दुनिया में, इसलिए बहुत रेयर बात है. आई एम रियली obliged to have you here. Thank you, sir. Thank you.